Good morning, students. We are going to study the next organization structure, that is divisional organization structure. Divisions means different units based on the number of product. So what is divisional organization structure? It refers to the division of the whole enterprise according to the major product to be manufactured by it. This is main feature of divisional organization structure. If case studies are coming, you have to consider these important lines. Means if any company is producing many products, we will suggest divisional organization structure. If in a business enterprise many types of goods are manufactured, departmentation is done on the basis of product instead of function. And the organization structure will look like in these types of organization. टॉप लेवल, मिडल लेवल. टॉप लेवल में होंगे शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर. अब मैंने डिवीज़न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. ये कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, मेटल प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट. जिस कंपनी ने एक ही फैक्ट्री में दोनों प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, दोनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पार्ट्स और यूनिट्स इस्टेब्लिश की हुई है और हर यूनिट इंडिपेंडेंटली काम कर रही है. हर यूनिट में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस departments are established, like we can see in this chart. Metal product divisions also having the main departments on the basis of main functions: production department, marketing department, finance department and personnel department. And same is going to be repeated in the plastic product production department, marketing department, finance department and personnel department. means जितने भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, हर प्रोडक्ट के लिए अलग से यूनिट इस्टेब्लिश कर दी जाएगी और वो यूनिट इंडिपेंडेंटली काम करेगी और वो यूनिट एक सोल एंटरप्राइज की तरह काम करने वाली है, जिसमें मेन एक्टिविटीज़ के बेस पर डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे और उस यूनिट का जो हेड होगा वो सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करेगा. तो इस तरह से हमें कुछ फ़ायदे मिलने वाले हैं. एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स. अभी हमने बोला कि जो डिवीज़न का हेड होगा वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा. So head of each division look after all the functions connected with their product. It may be production, marketing, finance, personnel, controlling, selling. All this department will be controlled by one divisional head. So in this way, it helps in development of varied skills in a divisional head. Second benefit, divisional results can be assets. We have already said different products having the different units and they are producing the things independently, so there will be no excuse that they are not getting the resources, they are not getting the manpowers, all having different resources. So this is we can test which department, which divisional head or which divisions is going better. Means all activities of each divisions are carried out independently and hence the divisional results, means profit and loss, can be assessed easily. On this basis, as an unprofitable divisions can be closed. Like metal production, अपने आप यूनिट मेटल का प्रोडक्शन कर रही है, प्लास्टिक यूनिट अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रही है, कोई इंटरफेरेंस नहीं, आपस में कोई शेयरिंग नहीं है, सबके अपने अपने मैन पावर्स है, सबके अपने अपने फाइनेंस है, सबके अपने रिसोर्सेज हैं. अब वो डिपेंड करता है कि वो जो डिविजनल हेड है वो कितने बेटर वे में इन मैन पावर्स और मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं. और अगर वो मिनिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेता है, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेता है, इट मीन्स वो डिविजनल हेड सक्सेसफुल है और वो डिवीज़न बेटर परफॉर्मेंस कर रही है. और जिसमें आउटपुट कम आएगा, इट मीन्स वो बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है. तो उस डिविजन्स को क्लोज करने के बारे में या और कोई उसके बारे में डिसीजंस लिया जा सकता है. तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे हम जज कर सकते हैं हर प्रोडक्ट की प्रोफिशिएंसी को. नाउ थर्ड बेनिफिट, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है. इंडिपेंडेंटली डिविजनल हेड अपने डिवीज़न के बारे में डिसीजंस ले सकता है, किसी और डिविजनल हेड को उसे कंसल्ट नहीं करना है. मीन्स एक तरह के सोल ट्रेड कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है, एक छोटे से डिपार्टमेंट को संभाल रहा है वो. तो इस वजह से बहुत आसानी से जल्दी डिसीजन ले सकेगा. सो एवरी डिवीज़न इज़ इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ एंड द डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीज़न इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग other divisional managers, and decisions are quick and effective. Now fourth, easy expansion.
बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे जैसे बिज़नेस सक्सेसफुल होता जाएगा, जब भी कोई बिज़नेस ओनर या टॉप लेवल डिसाइड करें कि नया प्रोडक्ट उन्हें ओपन करना है या किसी नई जगह पे उन्हें अपनी ब्रांच लगानी है, तो उनको आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हर डिवीज़न के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर यूनिट के लिए अलग से रिसोर्सेज दिए जाएंगे। उसमें बाकी किसी की डिवीज़न को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आसानी से बिज़नेस अपना एक्सपेंड कर सकता है। बट इसमें फाइनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। Easy expansion possible है. For every product a separate division is opened. If a company wants to introduce a new product, it can be introduced easily without disturbing the existing division. Hence it is easy to expand the concern. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मिलते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसमें। फर्स्ट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। मेटल प्रोडक्ट का हेड अलग है, प्लास्टिक प्रोडक्ट का हेड अलग है, सबको रिसोर्सेज अलग दिए जा रहे हैं, लेकिन जब रिसोर्सेज का डिविजन्स होगा तो उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। हर डिविजनल हेड अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सारे सफिशिएंट रिसोर्सेज उसको मिल जाए, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया चाहता है, तो उस केस में वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट को सारे रिसोर्सेज 100% मिलने चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे 100% मिलने चाहिए, तो उसमें वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो एवरी डिविजनल हेड वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज सुपरमेसी and to satisfy ego, each demands maximum resources for his division, and this situations leads to conflict among the various divisional heads. Now second, यहाँ पे हमने देखा है कि मेटल डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस पर्सनल डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट है। मीन्स हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो फंक्शनल डिविजनल, अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता तो 4 डिपार्टमेंट होते ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बट फंक्शंस तो 4 है सभी डिपार्टमेंट में, तो 4 और 4 8 डिपार्टमेंट सेटअप करने पड़े हैं, और 8 मैनेजर्स होंगे, 8 सबॉर्डिनेट्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे। मीन्स पैसा दुगना लग रहा है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। So duplicity of the functions, the entire set of function is production, marketing, financial, personnel, etc. is required for all divisions. It gives rise to duplicity of efforts among divisions, hence resources are misused and cost of operation is unnecessarily increased. सेल्फिश एटीट्यूड, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल हेड चाहता है कि मैं सुपीरियरिटी दिखाऊं, मैं सक्सेसफुल रहूं, आपस में क्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे, वो अपने डिवीज़न के बारे में सोचने लग जाएंगे सिर्फ, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ सेल्फिश एटीट्यूड देखने को मिल सकता है। एवरी डिविजनल ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस, समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अदर डिवीजन। दिस शोज देयर सेल्फिश एटीट्यूड, कॉन्सिक्वेंटली इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज अ होल। तो कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स तो हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि किस तरह की कंपनीज इसको सिलेक्ट करें और कब सिलेक्ट करें। इसके लिए हमें ये सिचुएशंस देखनी होगी। सुटेबिलिटी ऑफ द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ कहाँ पे सुटेबल होगा ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट, वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज़ मोर देन 1, जहाँ भी कंपनीज़ में ये सारी फीचर्स इंक्लूड होनी चाहिए। मीन्स जहाँ भी कंपनीज़ में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ हम डिसीजन ले सकते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। सेकंड, वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड मार्केटिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो और हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ अलग है, टेक्निक्स मेथड्स अलग हैं, उनकी सेलिंग की मेथड्स अलग हैं, तो आप उसको मर्ज नहीं कर सकते। बेटर होगा कि आप हर प्रोडक्ट का टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग कर दो। वेयर द साइज ऑफ कंसर्न इज़ वेरी लार्ज, ऑब्वियसली जब लार्ज स्केल पे आप कर रहे हो तो बेटर होगा कि आप डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ जब भी कोई कंपनी ये डिसाइड करती है कि अपना प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए अपना प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट एरियाज़ में ब्रांचेस इस्टेब्लिश करने वाली है, या अपने जो फैक्ट्रीज़ है डिफरेंट एरियाज़ में लगाने वाली है, या डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाने का सोच रही है, एक्सपेंशन की बात आ रही है, तो वहाँ भी हम सजेस्ट करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल।